اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسٹوری وظائف حب کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھروں میں اسی طرح خوشیاں اور برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج رجب کی 14 تاریخ بدھ کا مبارک دن ہے۔ آپ کے لیے ایک بہت خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر غیب سے مدد آ جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کا لاکھوں بار بھی شکر ادا کریں تو ہم اس ذات بابرکت کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے، جس کی ذات نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رجب کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کا دن آ چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرا رب دنیا کی ہر چیز، ہر طلب، ہر کچھ عطا کرتا ہے۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا اور تیز ترین وظیفہ ہے۔ مطلب یہ کہ وظیفہ پڑھ کر وہی کام ہو جاتا ہے جس نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کے دن پورا آپ کے پاس ہے، جب آپ کو وقت ملے اس عمل کو اور اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں اگر ابھی تک آپ رب کریم کو راضی نہ کر سکے اور اپنی ادھوری خواہشات، ناممکن حاجات پوری نہ کروا سکے تو آج آپ کے پاس موقع ہے۔ خدا را اس قیمتی وقت کو ضائع مت کرے، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پھر سال بعد ہی موقع ملنا تو اس وظیفے کو پڑھتا ہے، غیب سے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کے دن کا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج کے دن کا بہت اہم وظیفہ ہے۔ آج اپنی زندگی میں ایک مرتبہ وظیفے کو کر لے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کر لو، اللہ رب العزت کے لیے آسانیاں، آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا، تمام پریشانیاں دور فرما دے گا، آپ کی پریشانی اور آپ کی تکلیفوں دور کر دے گا۔ آپ کی تکلیف پریشانیاں پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ماہ رجب میں اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آج ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کا دن ہے، پورا دن آپ کے پاس ہے، 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ 1 منٹ آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ 24 گھنٹوں میں سے کوئی بھی وقت نکال لیں، 1 منٹ آپ کی زندگیوں کو کامیابی کی طرف لے جائے گا، کیونکہ یہ اتنا پاورفل عمل ہے۔ آپ کو وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ دوسروں کو بھی اللہ پاک آپ کو جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ آج اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ جو قرضے میں ڈوب چکے ہیں، بال بال قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں، قرض دار پریشان ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے، وہ قرضہ اترنا شروع ہو جاتا ہے، غیب سے دولت ملے گی، قرضوں سے نجات ملے گی، پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بینک کی پالیسیوں میں آ جاتے ہیں اور بینک سے سود پر قرضہ لے لیتے ہیں، پھر ان کا کاروبار مزید اور ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ سود ایک لعنت ہے، سود اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ بھی اپنے اس سودی چکر میں پھنس چکے ہیں، تو سب سے پہلے رب العزت کی بارگاہ الہی میں سچی توبہ کریں، تو ایسی توبہ کریں تو اللہ رب العزت کو راضی کر دیں۔ جب اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی تو اس دلدل سے نکلنے کا راستہ بھی کوئی نہ کوئی ضرور بن جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ بیمار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، بیماری ایسی ہے کہ لاعلاج ہو گئی ہے، آپ نے ایک پانی کا گلاس پر یہ وظیفہ کرنا ہے، اس طریقے سے انشاءاللہ آپ بیماری سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ آج کا وظیفہ رب کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کو پکارنے سے اللہ پاک کو یہ نام بہت رحمتوں اور برکتوں والا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں سے تعلق کرتے ہوں، آپ کہیں بھی ہوں، جہاں بھی بیٹھے ہوں، بحیثیت مسلمان یہ وظیفہ آپ لازمی کریے گا۔ 14 رجب بدھ کے دن آپ کی تمام خواہشات اور حاجات پوری ہوں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کبھی بھی کہیں بھی بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی وقت کی پابندی اور قید نہیں ہے۔ آپ اس وظیفے کو چلتے پھرتے، ہاتھوں کی انگلیوں
वजीफों में जैसी आपको आसानी लगे आपने बावजू हालत में करना है। इस वजीफे को नज़रअंदाज हरगिज़ मत कीजिएगा क्योंकि पूरा महीना ही फजीलत वाला है, बरकत वाला है। इस अमल को खुद भी करें और सवाब की नीयत से दूसरों अहबाब को भी शेयर करें। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुदा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपकी खिदमत में डेली बेस पर लेकर आ रही हूँ। अब अमल क्या है? आज माह रजब की 14 तारीख बुध का दिन पूरा आपके पास मौजूद है। जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठ जाए। आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 7 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, मुख्तसर और आसान दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ ले। आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ ले, तो इसमें बरकतें और फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला का फरमान इलाही है, जिसने मेरे मोहम्मद पर एक दफ़ा दुरूद भेजा मैंने उस पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल अता फरमाई। 3 7 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हाजत अलग होती है। आपने अपने मकसद को अपने जहन में रख लेना है, अपने जायज़ मकसद को नियत कर। मिसाल के तौर पर आपके ऊपर लाखों का कर्जा है, आप कर्जे से निजात चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। आप अपना ज़ाती घर लेना चाहते हैं, किराए के घर में रह कर थक गए हैं, अपना ज़ाती मकान खरीदना चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी, कारोबार में तरक्कियाँ अरूज है तो इसकी नियत कर ले। आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अगर आपकी औलाद नाफरमान है, कहना नहीं मानती, आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अगर शोहर आपको गालियाँ देता है, बकता है, आपसे बदतमीजी करता है, तभी आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। जो भी मकसद हो, आपकी हाजत हो, अपने मकसद की नियत करते ही साथ ही फौरी तौर पर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। ताउज़ और तस्मीया से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जिस काम की शुरू में ताउज़ और तस्मीया पढ़ लिया जाता है, इसमें बरकत हो जाती है, इसमें खैर हो जाती है, इसमें सलामती हो जाती है। जब आपने तमाम मकासद की नियत कर ली, ताउज़ और तस्मीया पढ़ लिया, तो पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है अल्लाह का नाम, अल्लाहुस्समद का वजीफ़ा। अल्लाहुस्समद एक ऐसा इसम है जो कोई बंदा 14 रजब बुध के दिन पढ़ता है तो रब राज़ी हो जाता है। जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए फिर इसकी तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं। जब कोई बंदा रब करीम को अल्लाहुस्समद से पुकारता है तो अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों जाओ इस बंदे की हर हाजत पूरी कर। रब करीम को राज़ी करना चाहती हूँ, अपने मनपसंद मुरादें पूरी करवाना चाहती हूँ, तो आज 14 रजब के बुध के दिन से फ़ायदा उठा लो। अल्लाहुस्समद पढ़कर रब को राज़ी कर लो। आपने अल्लाहुस्समद कैसे और कितनी बार पढ़ना है? अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद। इस तरह से आपने अल्लाहुस्समद अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लिया। तस्बीह के दानों पे आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आपने 11 बार अल्लाहुस्समद पढ़कर रब को राज़ी कर लिया, तो आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा करना है? आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है एक कुरानी आयत है। आपने इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ना है। आज हर घर की ज़रूरत है रिज़्क़, पैसा। इस इंसान बेशुमार रिज़्क़ और दौलत पैसा हासिल करना चाहता है, हर कदम पर कामयाबी चाहता है, रुकावटें बंदिशों का हमेशा के लिए खात्मा करना चाहता है। आज आपने दूसरे नंबर पर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर को पढ़कर रब करीम से सजदे की हालत में मांगना है। सजदे से सर उठाने से पहले हर दुआ, हर हाजत, हर ख्वाहिश, हर मुराद पूरी हो जाएगी। आज वजीफे पढ़ने की तौफीक किसी को होगी जिसे मेरा रब रिज़्क़ और दौलत से नवाजना चाहता है। आपने इस आयत मुबारक को कैसे पढ़ना, कितनी बार पढ़ना है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इस तरह से आपने आयत मुबारक को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 21 बार पढ़ ली, या आपने 101 बार पढ़ लेना है। जब आप ये आयत 21 बार या 101 बार पढ़ लें तो फिर आपने तीसरा करना है, जिसके बगैर ये अमल नामुमकिन है और अधूरा है। अमल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तीसरा नंबर पर है सूरह
कोसर। सूरह कोसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत। ये सूरह अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को ज़ुबानी याद होती है। अल्लाह की लाडली सूरत है। ये सूरत इतनी पावरफुल है कि जो लोग इस सूरत की तिलावत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत को पढ़ने की बरकत से टेंशनें परेशानियाँ दूर कर देते हैं। आपके गमों का मुदावा हो जाता है। अल्लाह ताला गैब की मदद को भी जारी फरमा देता है। बस आपने इस सूरत को पढ़ तरीके से ये ज़रा ध्यान से समाअत फरमाइए। आपने सूरह कौसर को खुशू खुशी से ठहर ठहर के बिस्मिल्लाह से शुरू करके पढ़ना है। आपने हर दफ़ा जब भी सूरह कौसर पढ़नी है तो बिस्मिल्लाह से शुरू करनी है और अपने हाथ की उंगलियों और तस्बीह के दानों पर 41 बार ये पढ़ लें। एक बात का ध्यान रखें कि आज अपने मकसद की नीयत करके बैठें और अपने रब के सामने आपने आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मांगना है। इस चीज़ को मांगना है जो नामुमकिन लगती है। आपने सबसे आखिर में जो वजीफ़ा करना है या अल्लाह या मोहम्मद का, यानी ए अल्लाह, ए मेरे रब, ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, रब्बुल इज़्ज़त आलमीन, हबीब के का सदका हमारी ज़िंदगी के तमाम मकासद को पूरा कर दे। इस हबीब को राज़ी करना ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अगर हमसे ये दो हस्तियाँ राज़ी हो जाएं तो फिर कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वजीफ़ा पढ़ने की बरकत से आपकी आखिरत बना देते हैं। दुनिया में इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। हर वजीफ़े को कामिल यकीन और भरोसे के साथ करें। आपने या अल्लाह या मोहम्मद कैसे पढ़ना है? या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद हाथ की उंगलियों या तस्बीह के दानों में 40 बार पढ़ लेना है। 40 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने के बाद आपने आखिर में 3, 7, 11 बार दुरूशी पढ़ना जो अमल के शुरू में आपने पढ़ा था। ये वजीफ़ा इसी तरीके के साथ आपने पढ़ना है और हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी है। वो रब है जो मुसब्बिल असबाब है, गैब से असबाब बना देता है। आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। इसके बाद इस वजीफ़े को, इस अमल को करना है। इस वजीफ़े के बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क़ की बरकत के लिए और दुआओं में शामिल होने के लिए कमेंट्स में अल्लाह का नाम ज़रूर तहरीर कर दें। अल्लाह का नामों में से कोई भी जो आप हमेशा पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, अपनी ज़ुबान पे ज़िक्र अज़कार करते हैं, तो आप अल्लाह का प्यारा सा नाम कमेंट्स में तहरीर कर दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।